الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی تھی. زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، اللہ الرحمن انسان، قرآن اور رمضان کا جو تعلق ہے، آپ نے اسے مہینہ بھر دیکھا، سنا، سمجھا اور پرکھا. سارے اجتماعات، سارے اکٹھ اور مل بیٹھنا، چل کر کے آنا، اپنے معاملات کو ترک کر کے یہاں حاضری، ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ جس رحمان نے ہمارے ساتھ وفائیں اس قدر کی ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی، تو اس کو بدلے میں وفا دینی چاہیے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کوئی اچھا معاملہ کرے تو بدلے میں اس کے ساتھ رویہ بھی اچھا ہونا چاہیے. آج کی اس ملاقات میں ہم نے سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کے پہلے لفظ الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس کی تفصیل جو اللہ تعالی نے تفسیر کی شکل میں، وضاحت اور توضیح کی شکل میں اپنی ہی کلام پاک میں فرمائی، جس میں رب نے اپنی وفاؤں کا تذکرہ کیا اور اپنی وفائیں سنا کر کے بدلے میں وفائیں مانگی، مگر انسان نے رحمان کی قدر بھی نہ کی، رب کے وقار کو بھی مد نظر نہ رکھا، اور اپنے رب سے منہ موڑ کے بے وفائی کا اظہار کر کے رب کے در کو چھوڑ کے در بدر ہو گیا. اس سورہ الرحمن کو انشاءاللہ العزیز ہم اختصار سے دیکھیں گے، جو قرآن مجید کے 7ویں منزل میں 27ویں پارے میں 3 رکوعوں کے ساتھ اور 78 آیات کے ساتھ ترتیب نزولی میں نمبر 97 ہے، 97، اور موجودہ توقیفی ترکیب میں جس کا نمبر ترتیب میں 55 ہے. ہم اس میں اللہ تعالی کا انسان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وفاؤں کو نبھانے کا، اسے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالی قرآن مجید کی اس سورہ میں سب سے پہلے اپنے صفاتی نام کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الرحمن. انسان تیرا رب وہ رحمان ہے کہ جس نے تیرے ساتھ وفائیں اس طرح نبھائی ہیں کہ رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر کے 99 حصے تیرے لیے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ پوری دنیا کی فی میل کے اندر تقسیم کیا اور ان میں رحم بنایا. جتنی بھی کائنات کی اللہ نے تانیث بنائی ہے، مؤنث مادہ نر کے مقابلے میں
उसके वजूद में रहम रखा और वहां से मेरी और आपकी तख्लीक फरमाई। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और रहम को अपने नाम रहमान से मुश्तक किया। एक हिस्से को पूरी दुनिया में बांटा और वो हिस्सा शौहर को मवद्दत देता है और अपने बच्चों को मोहब्बत और रहमत और मेहरबानी और ममता देता है। ये रहमान का कोई छोटा एहसान नहीं कि पैदा होते ही एक जानवर होकर के मां अपने बच्चे को चाटने लगती है, प्यार करने लगती है, और बेहोशी के आलम में मां अपने बच्चे को पकड़ करके सीने से लगा लेती है। दुनिया जहान की जितनी मोहब्बतें हैं, अगर उसको देखना है तो एक दरिंदा, चीरने वाला जानवर, वो भी अपने बच्चे को मुंह में उठाता है तो वो दांत नहीं चुभने देता। अर्रहमान, ये तेरे रहमान का एहसान है। ये तो एक हिस्सा है वफा का जो सारी दुनिया में बांटा। जिनके पीछे लग करके, जिनकी मोहब्बत और इश्क में मुब्तला होकर के आज तू 99 गुना अपने रब और मेहरबान को भुला रहा है। ये तेरी वफा होनी चाहिए थी मगर बेवफाई में बदली। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ये तुझे वफा की बजाय बेवफाइयों पे उभारा तो किसने उभारा? जिसके पास 99 गुना रहमत के हैं, वो तेरे लिए कितना प्यार करने वाला होगा। तूने छोड़ा तो क्यों छोड़ा? अल्लाह ताला दूसरी आयत में एहसान फरमाते हैं, अल्लमल कुरान, कि रहमान वो है कि जिसने वफा ऐसे की है कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सॉफ्टवेयर आसमान से उतारा हुआ, अपनी जुबान, मां की ममता वाली बोली इंसान को कभी भूलती नहीं, लेकिन रहमान ने इसे कितनी आसानी के साथ तेरे वजूद के हार्डवेयर के अंदर इसको इंस्टॉल किया कि अभी छोटा सा बच्चा, मां के दूध वाले दांत टूटे नहीं होते, मां के दूध की स्मेल नहीं गई होती, आगे 50-60 साल बुजुर्ग कारी कुरान मजीद सुना रहा होता है, ये बच्चा उसको रोक करके कहता है कि यहां आपसे गलती हुई है, लुकमा लीजिए, वापस लौटिए, तस्हीह कीजिए। अल्लमल कुरान, इससे बढ़ करके तुझे और क्या चाहिए? उससे वफा करना चाहिए थी, लेकिन तूने बावफा रहमान को कुरान सीखने सिखाने के बावजूद भी, पढ़ने पढ़ाने के बावजूद भी बेवफाइयों वाला रुख दिया तो क्यों दिया? हजरात, उसके बाद मालिक फरमाते हैं, खलकल इंसान, मेरी वफाओं को देख इंसान के मैंने तुझे बनाया है। वक्त कम है, मैं इशारों की जुबान में आज रहमान के इन सिलों को और वफाओं को आप अहबाब के सामने रखूंगा ताकि हम अपने बावफा रहमान से बदले में वफा उसको दें, ताकि वो अपनी रजा हमको अता करे और अपनी बेवफाइयों के लबो लहजे छोड़ करके उसकी तरफ रुजू करें। हमने देखा ही नहीं कि अल्लाह कभी अदम में वफा कर रहे हैं जहां कोई हमें जानता भी नहीं। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा, कभी वो रूह बना करके उसको संभाल के मां के पेट में लाके 120वें दिन वजूद में डाल के वफा निभा रहे हैं जहां किसी को पता भी नहीं है। फिर अल्लाह मट्टी की चुटकी से हमारे कमीर को उठा करके हीरा बना करके वफा को निभा रहे हैं, दुनिया को इल्म भी नहीं। कभी वो पानी की बूंद को मुकाबला हुस्न में लाके खड़ा कर रहे हैं, जिस पानी की बूंद को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन वो संभालता रहा, वफाएं निभाता रहा। खालकल इंसान, उसने तेरी मेरी हवा को कहां से उठा करके ला करके दुनिया की लोड शेडिंग के बावजूद रुकने नहीं दिया। वो सोते में भी चलाए, वो जागते में भी चलाए, वफाओं को निभाए। फिर उसने वफा ऐसी निभाई कि तेरे मेरे हिस्से का टेम्परेचर, गर्मी, ब्लड प्रेशर उसको नॉर्मल रखा है। थोड़ा सा अप हो जाए, बुखार चढ़ जाए तो खबर आती है, और अगर थोड़ा सा लो हो जाए, दिल घबराने लगे तो तब भी पता चलता है। मगर कौन है कि जो इसको नॉर्मल रख रहा है? और फिर रहमान वो है कि जिसने तेरे बाप की पुश्त में वफाएं निभाई,
اور सुल्ब में तुझे बसाया, मां की सीने की हड्डियों में तराइब में बसा करके वफाएं निभाई, और फिर मां के पेट में ला करके तुझको बना करके हसीन और जमील ला करके फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तेरी मूरत ऐसी संवारी कि तू अपनी उस सूरत को लेकर के आईने के सामने खड़ा होके कितने मान तरान से कहता है कोई हमसा हो तो सामने आए, लेकिन तू भूल गया कि तुझे ऐसा बनाया किसने है, वो तेरा रहमान है, खलकल इंसान के जिसने तुझे इंसान बनाया। अल्लाह ताला अगली आयत में कहते हैं अल्लामहुल बयान। आज तू शिकवे करता है, रब के खिलाफ बोलता है, तकदीर को इल्जाम देता है, रहमान के बारे में अनवाउ अकसाम की बोलियां बोलता है, अशार और गजलें लिखता है, अल्लाह को ताने देता है, लेकिन तू बोल तो सही, जरा सोच तो सही, कौन है कि जिसने हवा वाले सिस्टम को तेरे फेफड़ों में दाखिल करके फिर उन्हीं फेफड़ों को जो है सुकेड़ करके हवा को ऊपर उठा करके तेरे गले में तार मुख्तलिफ लगा करके दुनिया जहान के इंसानों के इस गले में लगे हुए तार मुख्तलिफ, हवा एक ही है, टच करती है, किसी की आवाज भारी निकले, किसी की हल्की निकले, किसी की सुरीली निकले, किसी की भद्दी निकले, कोई किसी रंग में बोले तो किसी रंग में, फिर मुंह के जौफ में लाके और इस दहन में लाके तालू के अंदर उठा के जुबान के एक लोथड़े को घुमा के दांतों के बीच हवा को मजबूत करके फिर हुरूफ और अल्फाज की तब्दीली, कहीं अलिफ बोला जा रहा है, कहीं ए बोला जा रहा है, कहीं अलिफ पे जबर है तो आ बोला जा रहा है, कहीं ई बोला जा रहा है, कहीं जो है जी बोला जा रहा है। ये हुरूफ और मखारिज ये रखे तो किसने रखे, ये तब्दीलियां अल्फाज के लबो लहजे, ये मुख्तलिफ जुबानें, तुझे रब याद ना आया, तुझे ये रब की वफाएं न दिखी कि अगर वो बोलने ना देता तो तू ज़मीर के इजहार को दुनिया के सामने कैसे करता, और तू बोला तो उसी के खिलाफ बोला। अल्लाह फरमाते हैं अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, तेरा रहमान वो है कि जिसने सूरज और चांद को एक मुनासिब निजाम में हिसाब से बांध करके तेरे ऊपर एहसान किया, वफा की है। याद कर, अगर सूरज जहां आज है रब थोड़ा सा नीचे कर देता, थोड़ा सा नीचे, तो तेरी जमीन जल के कोयला हो जाती, तू राख बन जाता। थोड़ा सा ऊपर कर देता, तेरा खून जम जाता। और चांद को देख कि किस तरह बरीक करके हिलाल से बढ़ा करके बद्रे बा कमाल बना के घटाता चला गया। क्यों तूने सोचा ही नहीं कि इसको रब ने समंदरों से जोड़ा, अगर समंदरों को ये रब इससे ना जोड़ता, पानियों के जौबन को, तेरे खून की रवानी को और धड़कन को चांद से ना मिलाता और चांद मुकम्मल रहता, तो तेरा खून तेरे वजूद से फट करके बाहर आ जाता, समंदर उछल करके सारा पानी बाहर निकाल देते। 13, 14 और 15 को जो लहरें होती हैं तेज होती हैं, समुद्री सफर मना कर दिया जाता है। और इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह लिखते हैं कि 13, 14, 15 को सींगी ना लगवाई जाए, हिजामा ना करवाया जाए कि चांद की वजह से खून जौबन में है, फिशारे दम उरूज पे है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तेरे रब ने चांद के साथ ये सारे सिस्टम कैसे जोड़े कि पहले दिनों में लहरें हल्की हल्की, फिर तेज तेज, फिर पूरी उठान है, ला करके सहलू से टकराया। ये सिस्टम किसने चलाए? अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, ये सब कुछ पूरे हिसाब किताब से बंधा हुआ चल रहा है। दूसरे अंदाज में देखिए, कभी सोचा कि शुमाली इलाके ऊंचे क्यों बना दिए, पहाड़ हजारों फुट बुलंदी पे खड़े क्यों कर दिए, वहां पर बर्फ को क्यों जमा दिया, ग्लेशियर कैसे बना दिए, और दरमियानी जमीन तेरी मेरी हमवार करके मैदानी क्यों कर दी, ज़राअत और फसल के सिस्टम कैसे उठा दिए, आगे जाकर के जनूबी हिस्सों में समंदर क्यों बहा दिए, ये सारा सिस्टम कैसे था। सूरज को एक जगह पे रख करके शुमाली इलाकों को
दूर करके वहां पे बर्फ जमाई। बर्फ जो है उनको हल्की फुल्की गर्मी दे करके, पिघला करके, दरिया, आबशारें, चश्मे चला करके, तेरे मैदानी इलाकों को पानी दे करके जो इजाफी था उसको जखीरा कर दिया समंदरों में। और फिर उसी ने उसी सूरज के साथ उठा करके आबी बुखारात बना करके टैंकरों को भर करके वापस तेरे इलाके में बस जो है बरसा करके, पहाड़ों पे बारिशें ज्यादा डाल करके वहां उस सर्कल को फिर जमाया, पानी जमा, बर्फ बनी, आगे बहाया, तेरे इलाकों में आया, फिर समंदर में। ये सारा सर्कल कौन चला रहा है? अशम्सु अल कमरु बिहुस्बान। कभी जुगराफिये के पहलू से पढ़ तो सही, ये सतह मुर्तफा क्यों है, ये मैदानी इलाके क्यों हैं, वो नशेब क्यों है, ये फराज क्यों है? इसको चलाया तो किसने चलाया? तू सो रहा होता है, हम तेरे साथ वफाएं कर रहे होते हैं, तुझे इल्म क्यों नहीं? तू वफाओं को भूला तो क्यों भूला, बेवफा बना तो क्यों बना? अल्लाह कहते हैं वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। सबसे अच्छा सर तो तुझे मैंने दिया था, झुकाना तो तेरा बनता था, लेकिन मेरे सामने दरख्त भी झुक गए और सितारे भी झुक गए। दुनिया कहती है बर्रे आजम अमेरिका में कुछ जमीन, कुछ इलाके ऐसे कि जहां शिहाबे साकिब गिरे तो जमीन में गड़े पड़ जाएं। नहीं, माजरत के साथ ये आसमान से सितारों को उतार करके जमीन पे झुका करके जमीन पे निशान डाले जाते हैं कि इंसान तुझे भी कुछ होश आए। तेरी जमीन पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े। जा जरा नेट के ऊपर गूगल को खोल और उसमें सजदा लिख, फिर उसके सीन और मंजर देख। दुनिया कहां कहां कैसे कैसे झुकी पड़ी है। कहीं चूजा सजदे में, कहीं परिंदे सजदे में, कहीं कबूतर सजदे में, कहीं जानवर सजदे में, कहीं दरख्त झुके हुए सजदे में। आज मैं और आप कहते हैं तूफान आया है, बड़ा सारा दरख्त रुक गया है, रास्ता बंद हो गया है। ये इंसान तुझे रब के सामने झुक करके बता रहा है बड़ी स्पीड में चल रहा है, झुकना तो तुझे चाहिए था, तू क्यों नहीं झुका? रहमान ने तेरे साथ इतनी वफाएं की हैं, जरा मेरे झुकने को देख ले। अल्लाह उसके बाद कहते हैं वस्समा रफ़अहा व वज़अ अल मीज़ान। इंसान तुझे रब की वफा याद नहीं आती? ये एक छोटी सी छत है, इसमें पिल्लर नहीं है, तू कितने खूबसूरत मंजर से देख रहा है, लेकिन वहां भी दीवार, इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, यहां भी दीवार, तू लगा बंधा है, तू महदूद हो गया है। लेकिन मैंने तेरे ऊपर जो छत उठाई है, कोई दीवार दिखा, कोई पिल्लर दिखा, कोई रुकावट बता। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 2004 या 5 में कॉन्वोकेशन करे और गवर्नर पंजाब ने आना हो, रिहर्सल हो रही है, ठेका दिया गया कि सर्कस टाइप तंबू और जो है वो टेंट लगाया जाए। बड़ी मेहनत की गई, लगाया गया, 1-आधे एकड़ के ऊपर मबनी। ये टेंट मामूली सी हवा का झोंका आया, उड़ा करके तारों के ऊपर से ले जा करके बाहर सड़क पे फेंका। जितने भी हसास इठारे थे मुतहर्रक हुए कि हो क्या गया है, सिक्योरिटी का ये जो है गैप आया तो क्यों आया, मिसहैप हुआ तो क्यों हुआ। तुझसे इतनी मामूली सी छत न संभाली गई, तेरे रहमान ने पूरी कायनात में इस छत को उठाया। तूने कभी सोचा कि कब उठाया, कैसे उठाया, कहां रोका? तेरे लिए तो ये एहसान ही काफी था, अगर उतार के तेरे ऊपर फेंक दे तेरा बचता क्या है। लेकिन तू इस वफा को भी भूल गया, तू बुलंद परवाजे लेकर के उड़ा, लेकिन रहमान के इस एहसान को भूला। अल्लाह कहते हैं वज़अ अल मीज़ान। तू इस वक्त खड़ा है तो बैलेंस है, तू बैठा है तो बैलेंस है, तू लेटा है तो बैलेंस है। कभी पूछ उससे कि जिसको खड़े में चक्कर आते हैं गिर जाता है, जिसको बैठे में चक्कर आते हैं वो गिर जाता है, जिसको लेटे में चक्कर आते हैं जमीन घूमने लगती है। लेकिन मैंने तुझको बैलेंस रखा, वजन तेरा बराबर रखा, तेरे जिस्म को इतना बैलेंस कि तू चले दायां, अपना कदम आगे करे तो बायां हाथ आगे हो जाए, बायां हाथ जो है पीछे करे, तेरा दायां कदम पीछे चला जाए। मैंने सिस्टम चला दिए, तुझको पेंडोलियम के तहत कितना मुतहर्रक बना दिया। ये सारी चीजें मैंने किस खूबसूरती के साथ इनको एक मीजान में रखा। लेकिन तूने क्या किया, अपने लीटर को
कितना कम कर लिया, और अपने मीटर को गज में बदल के गज टेढ़े कर लिए, तूने पैमाने खराब कर दिए। हालांकि तुझको चाहिए क्या था, मैंने बोला था अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, बैलेंस को अनबैलेंस ना करना, मैं तेरे वजूद को कहीं अनबैलेंस ना कर दूं, फिर तू लंगड़ा के चले, फालिज सदा होकर के चले, फिर जो है तेरे कदम वो तुझे बराबर साथ ना दे, तेरे जिस्म को उठा ना पाए, तेरे जिस्म में चुक पड़ जाए, तेरी कमर के कड़े और मोहरे खराब हो जाएं। ये मैंने बैलेंस रखे हुए हैं, मेरे निजाम और तराजू को खराब ना करना, कहीं ऐसे ना हो कि मुआमला हो जाए। और फिर अल्लाह कहते हैं याद रख, व अकीमुल वज़्न बिल किस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान, निजाम ये है, पैगाम ये है कि बेवफाई ना करना, मीज़ान को सही रहने देना। वल अर्द वदअहा लिल अनाम, मखलूकात को मैंने जमीन के लिए और जमीन को मैंने उनके लिए बिछाया। कभी देख तो सही, तू जमीन के ऊपर है, इसके अंदर कौन कौन है, परतें कितनी हैं, कीड़े कहां पे हैं, मकोड़े कहां पे हैं, हशरातुल अर्ज कहां है, बिछाया कैसे है, सिस्टम क्या है। कभी सोच तो सही, ये तेरे नीचे बिछे हुए कालीन कौन बिछा गया, वफा रब कर गया, और तूने इस जमीन पे रह करके अपना प्यार किसी और को दे दिया, आशिकी किसी और से कर बैठा, दिल किसी और को दे बैठा। मालिक फरमाते हैं फीहा फाकिहा, तू अपनी पीपल्स कॉलोनी की तरफ आता है, तेरे वहां मोड़ के ऊपर, हर सड़क के किनारे, हर बाजार के अंदर हमने कहां कहां तेरे लिए फल उगाए, कैसे कैसे सजाए, लटकाए, उनकी पैकिंग की, उनको सील किया, तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। और फिर ये फल ही नहीं, वन नखलु ज़ातुल अकमाम, कहीं केले उसको जुड़े हुए सिस्टम देख, कहीं खजूरों के खोशे देख, कहीं अंगूरों के गोशे देख, वल हब्बु ज़ुल अस्फि वर रैहान, और कहीं अनाज को देख, और कहीं जो है पत्तियों वाले खुशबूदार फूलों को देख। कायनात तेरे लिए सजाई, माला बना के, हार परो के, नाक से लगा के, खुशबू को महसूस करके, अनाज को समेट के, डकार दे करके, भूल जाता है उस रहमान को कि जिसने तेरे लिए ये नेमतें अताई। और फिर अल्लाह कहते हैं फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये जुमला रब ने बतौर एहसान इस सूरत में 30 बार दोहराया है, 30 मरतबा, कि कुछ हया कर, झुठला कि मैंने जो मुकद्दर में लिखा था मिला कि नहीं मिला, मैंने जो किस्मत में बताया था तकसीम किया कि नहीं किया, और जो मैंने तेरे नसीब के लिए कहा था तूने उसको उठ करके नहीं कमाया तो अलग बात है, लेकिन मैंने जो बोला था वो दे दिया। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार, अपनी बेस को देख, मैंने तुझे मट्टी से बना के, आग पे गर्म करके, ठिकरी की तरह करके, बजती हुई बना करके तुझको बोलने पे आमादा किया कि नहीं। बोलता है तो गलत क्यों बोले। वह खलकल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और मैंने शोलों से जिन्नात को बना डाला। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपनी असल को देख और टूटे हुए बर्तन की तरह बिखर मत जाना, रहमान के साथ जुड़ा रहे, तेरी अजमतें और बढ़ जाएंगी। अल्लाह कहते हैं रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, जरा देख तो सही, तेरा मशरक, कभी सूरज इस तरफ है, कभी सूरज इस तरफ है, सर्दियों में कहीं और से, गर्मियों में कहीं और से, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ते हुए कौन है जो इसको हरकत में इधर से इधर ले जाता है। और पहले बोला था कि ये सूरज और चांद लगे बंधे सिस्टम में हैं, कौन है जो हल्का हल्का इधर लेके जाता है तो बर्फ पिघलने लगती है, थोड़ा थोड़ा करके दूर करता जाता है तो जमने लगती है। ये सिस्टम और निजाम, ये मगरब दो करके तुझे भूल गया कि इनका रब कौन है, चला कौन रहा है। तू मशरक से उठा, मगरब में गया, यूरोप वालों में गुम होके रहमान को भूल गया। बात अच्छी नहीं, बात लौटने की है। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, तेरे रब ने मीठे और करवे पानी में बगैर दिखने वाले हाजिज
बीच में ला करके तुझको बता दिया कि वो इनको अलग कर सकता है, अगर अलग न करता तो ये तेरा खून, ये लीद और अंदर बनने वाला भूसे से, चारे से जो भी मुआमला है उसके बीच में से दूध को सफेद निकाला तो कैसे? कोई आड़ दिखा दे, दो समंदर हैं, एक मीठा पानी एक कड़वा पानी, आड़ नजर नहीं आती, फिर भी अपनी अपनी लाइन में है, तू जरा करके दिखा। अगर कोई ऐसा मुआमला है, अंडे को खोल करके देख, सफेदी अपनी जगह, जर्दी अपनी जगह, हाजिज भी नजर नहीं आता लेकिन मिलने भी नहीं देता, ये रहमान है। फिर तू तौहीद को और शिरक को मिला करके, मिक्स करके दे रहा है तो क्यों? मिलावट करके दे तो क्यों? दुनिया के निजाम बदले तो क्यों? अल्लाह को फिर जो है झुठलाए तो क्यों? फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान यखरुजु मिनहुमुल लुलुउ वल मरजान। दुनिया मानती है कि हीरा जो है और मोती, ये पर्ल, सारी दुनिया के हार एक तरफ, जन्नत का एक पर्ल एक मोती एक तरफ। ये दुनिया में कोई पर्ल तुझको दे दे, मोती दे दे, हीरा दे दे, तू कहे इसकी कीमत कोई नहीं, मैं तुझे जन्नत का हीरा बनाना चाहता हूं, मैं वहां का मेहमान बनाना चाहता हूं, वहां के मोती हीरे जवाहरात तेरे नाम करना चाहता हूं। तो दुनिया के छोटे मोटे पर्ल देख करके रहमान की उन वफाओं को भूल गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज जिन कश्तियों पे, जिन बहरी बेड़ों पे तेरा मान तरान है, वालाहुल जवारिल मुनशाआतु फिल बहरी कल आलाम, इंसान ये पहाड़ों की तरह जो समंदरों में तेरे इस वक्त बेड़े चल रहे हैं, इन पे कंटेनर लादे हुए हैं और तेरा सामान तिजारत जा रहा है, तेरी ट्रेड हो रही है, इनको पानियों के ऊपर उठा कौन रहा है? इनको चला कौन रहा है? डूबने से बचा कौन रहा है? और तुझे यूं आगे लेके जा कौन रहा है? वो तेरा रब पानियों पे तैर के बगावतों में आया, अल्लाह के तूफानों के अंदर रह के, मौजों में रह के तू सरकशियों में चला गया। जरा सोच तो सही। अल्लाह फरमाते हैं किस किस बात को रद्द करेगा? कुल्लु मन अलैहा फान, जिन चीजों में मस्त होके रहमान को भूला है वो फानी है। अल्लाह वफाएं याद दिला रहे हैं। जिन चीजों में मस्त होके, बीवी में, बच्चों में, आल में, औलाद में, हाल में, माल में, दुकान में, ट्रेड में, तिजारत में, मंडी में, बाजार में, खेल में, खलियान में, खेतों में, दौलत में, नशे में मस्त होकर के लगा हुआ है। कुल्लु मन अलैहा फान, ये जमीन के ऊपर जो मैंने बनाया है ये बाकी रहने वाला नहीं, सबको पना है। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, रहने वाला तो वो है जो बावफा है। तू बेवफा चीजों से वफाएं कर रहा है और जो बावफा है उससे बेवफाइयों पे उतर आया तो क्यों? हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की थी। अल्लाह फिर एहसान जितलाते हैं और फरमाते हैं, लोगों सुनो, आइए, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, तुम क्या हो? कायनात की हर चीज मेरी मांगत है, साइल है, फकीर है, मेरे दर पे झुकती है। फरिश्ते झुके तो मेरे सामने, मलाइका मेरे सामने, आसमान मेरे सामने, जमीनें मेरे सामने, हजर शजर मेरे सामने, ये सब के सब सवाली बन करके नबी वली कुतुब अब्दाल मांगे तो मुझसे मांगे। लेकिन तुझे क्या हुआ है? तू अपना कशकोल लेके कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। तेरा कशकोल दर दर चला गया तो क्यों? याद रख, हर दर दस्तक के काबिल नहीं होता। अल्लाह फरमाते हैं, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, तेरे रब की शान हर आन बदलती है, निराली है, मुख्तलिफ है, अजीम है, अजमतों वाली है, देने वाली है, जगह जगह पे वफा करे, हर पल में निभा के दिखाए। अभी सांस, अगली सांस, उससे अगली सांस चला रहा है, तू सो रहा है, रूह परवाज कर गई है, तेरी हिफाजतें कर रहा है, तू सो रहा है, वो तुझको फिर भी चला रहा है, तू जाग रहा है, वो वफाओं को उठा रहा है।
और तू क्या कर रहा है, मर्जियां कर रहा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। अल्लाह कहते हैं हाँ हाँ, अगर तू बेवफा बना है और कहता है कि मेरे को पूछने वाला कोई नहीं, हिसाब करने वाला कोई नहीं, किताब करने वाला कोई नहीं, ए जहान मिठा अगला किस डिठा, तू इस चीज पे लग गया है। सनफ़रुगु लकुम अय्युहस सकलान, ओए जमीन के ऊपर बोझ बनने वालों, जमीन के ऊपर गुनाहों के बोझ लादने वालों, ए जिन्नो इंसान, हम तुम्हारे लिए फारिग होकर के तुम्हें बताने वाले हैं कि मुआमला क्या है। या माशरल जिन्नी वल इंस। अल्लाह पहले जिन्नों को मुखातिब होते हैं, क्योंकि जिन्नों के बारे में हमारी सोच ये है कि इनके पांव जमीन पे होते हैं और इनकी सर की जो है इंतहा वो आसमानों से, और बगोले को हम वो है जिन समझ लेते हैं और इनकी ताकत और पावर को बड़ा जो है ऑथेंटिक समझते हैं। अल्लाह कहते हैं हाँ हाँ, उनको भी छुपी ताकतों को भी ले आओ, और इंसान तू अपनी पावरें भी ले आ। इन इस्ततातुम, जितनी हिम्मत है वो भी ले आओ। अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, हमने आसमान और जमीन के आफाक रखे हैं, इनसे निकल करके दिखाओ। फनफुदू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, लाओ कोई दलील, लाओ कोई बैयना, लाओ कोई प्रूफ, कोई एक फर्द, कोई एक शख्स, कोई एक हस्ती, तुम्हारे राकेट, तुम्हारे तैयारे आवाज से भी तेज और बड़ा कुछ तुमने बोला बनाया है। कंकड़ तैयारों को तुमने जमीन दोज कर दिया, बड़े तेज हैं और रफ्तार बड़ी है, संभाले नहीं जाते। आओ ना कभी कुछ बताओ तो सही, किसी ने आकर के खबर दी हो कि मैं अल्लाह की हुदूद को करास कर गया, तो फिर वफाएं निभाओ, क्योंकि रब ने इतनी वुसअत दी है। अल्लाह फरमाते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, अगर निकलने की कोशिश करोगे बनाओ, साइंस लड़ाओ, टेक्नोलॉजी उठाओ, कुव्वतें अपनी सरफ करो। युरसलु अलैकुमा शुआजुम मिन नार, दुनिया कहती है हम जब भी एक खास हद पर गए तो सामने धुआं आ गया, सामने पिघला हुआ तांबा ऊपर से गिर रहा है, नजर कुछ नहीं आ रहा, गर्मी है, शोले हैं। अल्लाह का कुरान कहता है युरसलु अलैकुमा शुआजुम मिन नार व नुहासुन फला तंतसिरान, तुम्हें वहां से बचाएगा कोई नहीं, सामने धुआं भी होगा, पिघला हुआ तांबा भी होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रद्द तो करके देखो किसी हकीकत को। फिर अल्लाह कहते हैं फ़इज़न शक्कतिस समाउ, आज जिस आसमान के नीचे तूफान बगावत खड़ा किया है तूने, याद रख के ये फटने वाला है। फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, ये सुरख चमड़े की तरह हो जाएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किस किस पहलू को रद्द करेगा। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुम वला जान, हम ऐसा सिस्टम रखते हैं, पूछें तो पूछ सकते हैं, पूछेंगे भी, इंसान झुठलाएगा, कहेगा अल्लाह मैंने तो ये किया ही नहीं, करा ही नहीं। हमने तेरा जो फीडबैक है ना, तेरे वजूद के अंदर तेरा सारा डाटा सेव करके, तेरी जो है बैकबोन, कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी की आखिरी जो दुमची है, उसके अंदर तेरा सारा ऑडियो वीडियो डाटा रखा हुआ है। हाँ, जितने भी जिन इंसान, सारी दुनिया मट्टी जो है वजूद और बॉडी को खा जाए, लेकिन वो हिस्सा जाय नहीं होता। क़यामत के दिन खोल के तेरे सामने तेरा सब कुछ चला देंगे, और तूने जो कुछ भी किया होगा सीन सामने आ जाएगा, और तेरी किताब मंशूर हो जाएगी, खुल जाएगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अब झुठला किसको झुठलाता है। मेरे मोबाइल में 2GB 4GB 8GB का कार्ड है, नीचे गिरा है, गाड़ी गुजर गई है, मैं देखता हूं सब कचरा हो गया है, मैंने कार्ड उठा के दूसरे मोबाइल में डाला, डाटा सेफ है, सब कुछ चल रहा है, तुझे मट्टी खा भी गई, हादसे का शिकार हो भी गया, तेरा वजूद मिट भी गया, लेकिन तेरा डाटा जो है वो तेरा सेफ है, रब ने उसको संभाला हुआ। अल्लाह कहते हैं एक और बात भी है, युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखदु बिन नवासी, चेहरों से पहचाना जाएगा, जुर्म अपना निशान छोड़ता है।
اور जो भी निशान है दिल पे नुक्ता डालेगा और दिल जो है ये चेहरे पे और माथे पे आकर के दिखा देगा। फिर होगा क्या, फयूखज़ बिन नवासी, इन मुजरमों को पकड़ा जाएगा, चेहरे पहचान लिए जाएंगे और रंग फक हो चुके होंगे। इनको पेशानी के बालों से पकड़ करके, वल अकदाम, और कदमों से पकड़ करके गुच्छू मुच्छू जैसे किया जाता है घुमा करके जहन्नम में फेंका जाएगा। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैंने तरगीब भी दी, मैंने तरहीब भी दी, मैंने अच्छे मंजर भी बताए, मैंने बुरे मंजर भी बताए, मैंने तुझे फायदा भी बताया, तुझको नुकसान भी सुझाया, तुझको जन्नत भी दिखाई, जहन्नम के मनाजिर भी बताए, फिर भी बेवफाई करे। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हादिही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। आओ जिसको झुठलाते थे आज आंखों से देख लो। आज दुनिया कहती है ना ये मौलवी डराते रहते हैं, कुरान ऐसे ही डराता रहता है, कहीं उसमें खैर की खबर नहीं, ये ना ले जाने वाली बातें, ये ऐसी वैसी बात है। अल्लाह कहते हैं आओ आज झुठलाओ, सबको पेश किया जाएगा, मुजरम वहां पे वारिद होंगे। यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन। अल्लाह कहते हैं हम इनको ऐसा सर्कल दिलाएंगे कि एक तरफ आग के शोले होंगे, एक तरफ खौलते हुए पानी होंगे, और उन चश्मों के दरमियान से गर्म पानी और धुएं और आग के अंदर से हम इनको घुमा घुमा करके लेकर के जाएंगे। जिस तरह जमीन में सज्जियां बनाते हो वहां तुम्हारी सज्जियां उठेंगी, भाप बनेगी और पीप निकलेगी, फिर पता चलेगा कि किस किस चीज को झुठलाया जाता है। फिर अल्लाह कहते हैं वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो इस मंजर से डर गया, रब के सामने खड़ा होने से डर गया, हम उसे खुशखबरी देते हैं कि 2 जन्नतें देंगे। 2 जन्नतें डरने वाले के लिए, 2 जन्नतें वफादार के लिए, 2 जन्नतें हयादार के लिए, 2 जन्नतें इताअत करने वाले के लिए, 2 जन्नतें मानने वाले के लिए, 2 जन्नतें। अल्लाह क्या है? ज़वाता अफनान। आज बेटे का नाम अफनान तो रख लिया, अबू अफनान तो बन गया, लेकिन ज़वाता अफनान, झुकी शाखों वाले मंजर जन्नत के भूल गया। ये सूरह अर्रहमान में रब ने जिक्र किया था। अल्लाह कहते हैं फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनानी तजरियान, उसमें बहते हुए 2 चश्मे होंगे। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, झुठलाओ इसको, करो बेवफाइयां। अल्लाह कहते हैं मुत्तकीना फीहा, नहीं उससे पहले मालिक फरमाते हैं फीहिमा ऐनानी तजरियान फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान। हम हर फल का जोड़ा देंगे, हर फल का वैरायटी में जोड़ा देंगे। ये जन्नतें हैं रब से डरने वाले के लिए। भाइयों आज दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है कि मकान ऐसी जगह पे हो जो नहर के किनारे हो, किनाल का व्यू मिले, और हाउसिंग स्कीम वहां पे, और अगर वो नीचे से गुजरे ऊपर मकान हो तो क्या कहना है, और फिर झुकी शाखों वाले दरख्त हों जो पानियों को टच कर रहे हों। हम क्यों जाते हैं शुमाली इलाकों में, वहां की वादियों को देखने और चश्मों को देखने, आबशारों को देखने, झुके दरख्तों को देखने, कहीं चनारों को देखने, और उन नजारों को देखने कि जिनके अंदर ये सारे मनाजिर हैं। अल्लाह कहते हैं तुमको मिलेंगे। और घर में अगर दरख्त फलदार हो, हर फल जो है अपने घर में डबल डबल मिल जाए तो और क्या चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी जगह होंगी, और फिर कैफियत क्या होगी, मुत्तकीना अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक व जनल जन्नतैनि दान। यहां पर मोटे दबीस तहों वाले अस्त्रों के साथ इनके बने हुए रेशमी तकिए उनके ऊपर टेक लगा के बैठे होंगे। कहां ये प्लास्टिक की कुर्सियां, कहां ये बेटेक सहारों के या नीचे बैठना, कहां ये तुम्हारे दुनियावी गद्दे या सोफे, लेकिन हम जन्नत में दे रहे हैं। और फिर तुम जहां बैठोगे वह जनल जन्नतैनि दान, हम तुम्हारी जन्नतों को तुम्हारे करीब करते चले जाएंगे, यूं लगेगा कि सामने है। अल्लाह ताला फरमाते हैं झुठलाओ, बेवफाइयां करो, करते हो क्या करो। फीहिन्ना कासिरातुत तरफ, महल बन जाए, कोठी बन जाए, और बड़ी बड़ी उठान हो जाए, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बन जाए, बड़े बड़े नजारे हों, लेकिन अगर वहां अल्लाह औरत का वजूद ना रखे तो वो घर जो है वो काटने लगता है। छुट्टियों में बच्चे चले जाते हैं ना, घर तो वही होता है। जिनको कह रहे होते हैं चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, शोर नहीं करो, एक हफ्ते के लिए, चंद दिनों के लिए ससुराल चले गए, मायके चले गए, बच्चे अपने ननिहाल चले गए,
پھر جو ہے پیچھے وہی گھر ستا رہا ہوتا ہے، پھر فون کر کے بلا رہا ہوتا ہے، کوئی کمی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ فی ہن قاصرات الطرف، ہم نے وہاں جھکی نظروں والی، موٹی آنکھوں والی، شرمیلی اور با حیا حوروں کا اہتمام کیا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، آج تک وہ انٹچ ہیں، تیرے آنے تلک، تیرے سے پہلے نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے ان کو ٹچ کیا ہوگا۔ کس کس بات کو جھٹلاتا ہے؟ شیپ کیا ہوگی، شکل کیا ہوگی، چمک دمک کیا ہوگی، انداز کیا ہوں گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، یوں لگے گا کہ جیسے میرے سامنے ہیرے پڑے ہیں، موتی پڑے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں اتنے احسان کروں تو پھر بھی یاد نہ کرے۔ دنیا میں تجھے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ دے، ساری زندگی یاد رکھتا ہے کہ اس نے یہ رشتہ کروایا تھا، بڑا میرے اوپر احسان کیا تھا، اس نے مجھ کو بیٹی دی تھی، اس کا بڑا احسان ہے، اس نے مجھے عزت دی تھی، اس کا بڑا احسان ہے۔ اور بندے سوچ تو صحیح، رحمان نے انسان کے لیے اس جہان میں کیا کچھ نہیں کر ڈالا۔ تو حسن کا بدلہ حسن سے تو دیتا، وفا کا بدلہ وفا سے تو دیتا، میری توحید کو تو اپناتا، شرک سے تو جان اپنی چھڑاتا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ رویے تو حسن سے رکھتا، بدعات سے نکل کر کے سنت کو دل میں جگہ دیتا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ تو نے مرضیاں کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور بات بھی سنو، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو جنتوں کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں، ان دو جنتوں کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں۔ کس کس بات کو رد کرے گا، ٹھکرائے گا، انکار کر کس کا کرتا ہے؟ مدہامتانی، اللہ اکبر، گہرے سائے، گہرے سائے، چھاؤں ہی چھاؤں، فیہما عینان نضاختان، یہاں ہم تمہیں گرم چشمے بھی دیں گے، پانی کے ٹھنڈے چشمے ہوں، بھوک لگی ہو، بھٹا ہو اور ساتھ میں چھلی ہو، اور اس کو بندہ کھا رہا ہو، ٹھنڈا پانی پی رہا ہو، گرمیوں کو انجوائے کر رہا ہو، اور موسم ہو سردی کا، چشمہ گرم ہو، پانی جو ہے مرضی کے مطابق ملے، جتنا چاہیے اتنا، اور وہاں پر کوئی اس طرح کے ہمارے لگے ہوئے گیزر بھی نہیں، سسٹم بھی نہیں۔ بندہ رب کی شان بیان کرتا ہے کہ نہیں؟ کیا کہنے، زبردست پانی، دھوئیں اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تیرے لیے دوسرے ماحول کے بھی، ٹھنڈا ماحول مانگا تو وہ ملے گا، گرم ماحول مانگے تو یہاں تجھ کو یہ ملے گا، گرم چشمے دیں گے۔ کس کس بات کو جھٹلائے گا؟ فیہما فاکہۃ، یہاں انواع انواع، انواع انواع، یہاں تنکیر کے ساتھ لایا گیا، جو بھی تیری سوچ سوچ سکتی ہے وہ پھل وہاں میسر ہوگا۔ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، یہ دنیا کے علی پور کا انار دیکھ کے، طائف کا انار سن کے، بدانے کا نام دیکھ کر کے، کندھاری انار دیکھ کے تیرے منہ میں پانی آ جائے، لیکن یاد رکھ یہ جنت کے انار، یہ جنت کی کھجوریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، یہاں خوبصورت اور خوبصیرت اور بھی حوریں ہوں گی، یہ الگ پورشن ہے۔ گرمیوں کے ماحول اور وہاں کے لیے الگ انداز، سردیوں کا ماحول، ٹھنڈا ماحول، وہاں کے لیے الگ دو جنتیں، یہاں کے لیے الگ دو جنتیں، یہاں بھی خوبصورت اور خوبصورت ہیریں حوریں۔ اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حور مقصورات فی الخیام، یہ خیموں میں لگے ہوئے۔ آج خیام نامی ہوٹل بنا کر کے تو نے چلائے، اور یہ چین بڑی چلی، سرکل بڑا چلا، وہاں پہ پردے کے اہتمام، الگ الگ کیبن، تو تعریفیں کرے، لیکن ان جنتوں میں تیرے اپنے خیمے، اپنی حوریں، اپنے سسٹم، اپنے نظام، حسن اور جمال، صورت بھی اچھی، سیرت بھی اچھی۔ اللہ کہتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، آج کہاں دھکے کھا رہا ہے؟ آج کس جگہ تو نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر کے، کہیں زنا، کہیں فحاشی، کہیں عیاشی، کہیں دنیا کی استعمال شدہ چیزیں، ان کے اوپر تیری نظریں، دوسرے کی عزت کے اوپر تیری سوچیں اور کمندیں، یہ سب کچھ کر کے تو بے وفا بن،
لیکن میں نے تو وفا کر کے تیرے لیے وہ رکھا ہے کہ جس کو آج تک تیرے سے پہلے کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا، خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں متکئینا، تو مزے سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، علی رفرفن، وہاں پہ مسندیں بچھی ہوں گی، خضرن، یہ جنتی ریشم کی صورت میں سبز، و ابکرین حسان، ایسی ورائٹی ہوگی کہ ایسی جدت آج تک دنیا میں تو نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کس کس بات کو، کس کس نعمت کو، کس کس وفا کو، رب کی ادا کو، تیرے ساتھ جو ہے تعلقات کو جھٹلائے گا؟ جھٹلا تو صحیح۔ تبارک اسم، اللہ کہتے ہیں تبارک اسم ربی کا دل جلالی والاکرام، یہ تیرا رب با برکت ہے، نام اس کا جلال بھی بڑا، کمال بھی بڑا، اکرام اور عزت کرنے والا بھی بڑا، لیکن تجھے ہوا تو ہوا کیا ہے، تو نے کیا تو کیا کیا ہے؟ اس با وفا رحمان کو بھلا کے بے وفائیوں پہ آیا، انکار کیے، رد کیا، رب نے سجدے کے لیے بلایا تو اکڑا رہا، رب نے قیام کے لیے کہا تو لیٹا رہا، رب نے جھکنے کے لیے رہا، تجھے بینڈ نہیں پڑا، اللہ نے توحید کے لیے بولا تو ایک در پہ نہیں آ سکا، رب نے تجھے آواز دی تو جواب نہیں دے سکا، اللہ نے یا ایھا الانسان بولا تو جی رب نہیں بول سکا، اللہ نے یا ایھا الناس بولا تو اللہ کو جواب دے کے یا رب یا رحیم یا کریم نہیں کہہ سکا، تجھے اللہ نے بلایا یا ایھا الذین آمنوا تو کان نہیں دھر سکا، رب نے کہا حلال کھا تو حرام نہیں چھوڑ سکا، پھر اللہ ذکر کریں تو نہ کریں، کریں تو کیوں نہ کریں، بلا رہے ہیں۔ آج بھی موقع، اختتامی مجلس، آج وفاؤں کے ساتھ یہاں سے نکل کر کے جائیں، عہد کر کے، پیمان کر کے، عزم کر کے کہ رحمان تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ جہان دیا، رحمان تیرا احسان ہے کہ تو نے انسان بنایا، رحمان تیرا احسان ہے کہ تو نے قرآن دیا، رحمان تیرا احسان ہے کہ تو نے رمضان دیا، رمضان میں اتنی بڑی عظمت دے کے جنتوں کے دوارے کھول کے اللہ تو نے آواز دی ہے، تو لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر رہوں گا، میں حاضر رہوں گا، میں وفاؤں کو نبھاؤں گا، میں انسان بن کے رہوں گا۔ اللہ جس طرح اس مہینے میں تیرے گھر میں حاضری دیتا رہا، میں باقی 11 مہینے بھی وفا کروں گا۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اللہ مسجدیں خوش ہو جائیں گی، دامن بھر جائیں گے اور ان کے پیٹ بھریں گے، صحن اسی طرح جو ہے آباد رہیں گے، شاد رہیں گے۔ اللہ میں دنیا کی خاطر، مال کی خاطر، دولت کی خاطر تجھے بے وفائیوں والے رخ نہیں دوں گا، اللہ میں دنیا کا حسن بھی مانگوں گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن یہ دنیا مٹنے والی، یہاں سے میری جو ہے روح نکلنے والی، لاشا اٹھنے والا، ماں باپ رونے والے، عزیز و اقارب یاد کر کے بھلانے والے، بیوی بچے صبر کر جانے والے، اللہ کوٹھیوں سے میری نیم پلیٹ اترنے والی، قبروں کے اوپر طوفان اور حادثوں کے ساتھ برابر ہونے والی، نام و نشان مٹنے والا، گویا کہ میں تھا ہی نہیں۔ اللہ دنیا کے لیے کماؤں گا لیکن اتنا جتنا مجھے یہاں رہنا ہے، لیکن آخرت کے لیے کماؤں گا اتنا کہ جتنا مجھے وہاں رہنا ہے۔ تو میری مدد کرنا، تو مجھے توفیق دینا، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر، میں ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ تیرا ذکر بھی کروں، تیرا شکر بھی کروں اور تیری عبادت کا حسن بھی تجھ کو دوں، اللہ تیرے سے وفاداریاں بھی نبھاؤں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔